चलो भाई 37-year-old Sana, wife of Javed, educated up to inter class, resident of Korangi Town, housewife by occupation, married for 4.5 years, non-consensual marriage, and the first marriage of both husband and wife. The last menstrual period of 23rd August जाना एक 2021. बेटा एक मिनट जी मैं सर. लिसन टू थोड़ा सा जी स्लो सर. आराम से कोई जल्दी नहीं है अच्छा. हाँ जी सर. हाँ और हाँ सर. ऊंचा ताकि एवरीबॉडी कैन हेयर यू लेकिन प्लीज दो स्लो Okay sir. Start from 37-year-old Sana, wife of Javed, educated up to inter class, resident of Korangi Town, housewife by occupation, married for 4.5 years, non-consensual marriage and the first marriage of both husband and wife, with last menstrual period of 23rd August 2021, admitted at the Jinnah Hospital, Karachi on 8 September 2021 with complaint of inability to conceive 4.5 years for workup and evaluation. And according to my patient, the couple is living together and for 4.5 years and trying to conceive with vital frequency of 2 times per week. And the patient has this regular cycle. She bleeds for 3 days in every 28-day cycle. And the flow is more on second day of cycle. She used 2 to 3 pads that are fully soaked and there is no flooding and the small clots are present. No dysmenorrhea, dyspareunia, intermittent bleeding, no history of heat and cold intolerance, nipple discharge, chronic cough, low-grade fever, weight loss, and no history of vaginal discharge. In her male partner history, he is 40-year-old working in a textile company and there is a hot environment and he is not addicted of smoking, no history of urethral discharge, diabetes, hypertension and no history of having surgery. Semen analysis was done found to be normal and he has visited to the multiple skin was done that shows no. She has no feeling of mess and no urinary and bowel symptoms. And she has taken 6 cycles of ovulation induction followed by follicular tracking and the last cycle is in April 2021 and name of the tablet is not known to patient. And then, in now second day hormonal profile was also done and the reports are not known to her. Hysterosalpingogram was done in July 2021 that shows both tubes are blocked. So she was referred to Jinnah Hospital and she is admitted here for further workup and evaluation. Menstrual cycle I have already described in detail and the couple has never practiced contraception and pap smear has never been done. In her medical history, she has no history of diabetes, hypertension, TB, and asthma. In her surgical history, she has history of laparotomy due to intestinal perforation after typhoid fever 16 years back, followed by infected wound that healed after some time. And she has history of the blood transfusion during that surgery and no family history of subfertility, no family history of subfertility. Father is hypertensive, and there is no history of diabetes and any endometrial, ovarian, and breast and colon cancer. In the personal history, sleep is disturbed, eating and bowel habits are normal, and she is not addicted of pan, chalia, and gutka and smoking. In her socio-economic history, they live in her own house. Husband earns 22,000 per month, and the living style is satisfactory. On examination, 37-year-old female sitting comfortably on bed, well-oriented with and pleasant person, with body mass index of 26 kg per meter square, with vitals of blood pressure 120 by 80 millimeter of mercury, pulse 90 beats per minute, temperature 98.6 Fahrenheit, and respiratory rate 16 breaths per minute, with no pallor, jaundice, clubbing, chylomicria. Lymph nodes are not palpable, thyroid is not enlarged, breasts are normal with no mesh palpable in all four quadrants. In the respiratory examination, normal bilateral vesicular breathing. Cardiovascular examination, S1, S2 heart sound is audible. On abdominal examination, on inspection, abdomen is moving symmetrically with respiration. Healed midline scar is present with no striae and pulsation. Hernial orifices are intact. On superficial palpation, there is no tenderness, and on deep and the mass is felt of 16-week size, occupying hypogastric region with regular margin, smooth surface, firm in consistency. Temperature overlying skin is normal, mobile from side to side, and lower limit is reachable.
On vaginal examination, on inspection, vulva appears normal with normal hair distribution, and on speculum examination, cervix looks normal with no blood, mucus, and discharge seen. And on removal of speculum, vaginal walls appear pinkish. And on bimanual examination, cervix is normal, and the uterus is filled 16 to 18 week size. 16 to 18 week size, non-tender, regular margin, smooth surface, and the bilateral fornix are visible. Okay, can you summarize your case? 37-year-old, para 0 plus 0, with last menstrual period of 23rd August 2021, with complaint of inability to conceive 4.5 years, and on palpation 16-week size mass is felt, mobile side to side with regular margin and a smooth surface, firm in consistency. On vaginal examination, 16 to 18-week size mass is felt with the cervical movements are transmitted to the mass, and the a histiosalpingogram shows bilateral tubal blockage with moderate hydrosalpingo. ओके बेटा, इन्वेस्टिगेशंस आप क्या क्या करोगे? I want to have the baseline investigation, blood group with RH factor, CBC with complete blood count with date, in which I want to know hemoglobin, total leukocyte count, and platelets. सर बताती दीजिए. अच्छा, हाँ साथ साथ आप बताते जाओ, क्योंकि रिपोर्ट्स आपके पास है. Hemoglobin is 10, total leukocyte count is 4, platelet is 216. And I want to know hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibody, both are negative, non-reactive. And urine detail report, I want to know red blood cells, bacteria, protein, nitrites, and glucose. And the urine detail report is normal. And the random blood sugar level, that was 90. And I want to know FSH second day hormonal profile FSH and LH. FSH was 5.5 and LH was 4.3, and 21-day serum progesterone, uh, that was not done, and TSH 1.4. Semen analysis of my patient, and the report, ultrasound report सॉरी of. बेटा, लेकिन 21 हाँ डेज जी के सर. बाद क्या आपने बताया, पोजिशन के बाद? जी सर. प्रोजेस्टेरॉन के बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ऑफ माय पेशेंट, सेमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड, सेमेन एनालिसिस. एंड रिपोर्ट ऑफ हिस्ट्रियोसल्फिंगोग्राम. रिपोर्ट तो आपके पास है तो सी उसकी, तो सब कुछ झगड़ा कि नहीं है? जी सर. हाँ हाँ, उसके पास था. उसको ये भी पता था कि उसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं. ओके. अच्छा बेटा, मुझे आप ये बताओ, ये जो आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इनकी सिग्निफिकेंस मुझे आप साथ साथ बता दीजिए. स्टार्टिंग फ्रॉम, विल गो द अदर वे अराउंड विद जो आपका नीचे से हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेस्टेरोन से, हाँ जी देन सर. वी मूव अप. Why did you have this 21 day progesterone? Why do you want to have this 21-day progesterone levels? पेशेंट इज ओव्यूलेटिंग और नॉट. 21 डे प्रोजेस्टेरॉन में बताया. ओव्यूलेशन इज नॉर्मल एंड पेशेंट इज ओव्यूलेटिंग. You want to confirm the patient is ovulating, right? जी सर. What are the other tests which can confirm the ovulation is happening? LH and LH will shows the enteral follicular count. How And does the नहीं, FSH, sorry sir, FSH and LH. FSH will shows the enteral follicular count. FSH shows the enteral follicle count? Ovarian reserve of patient. What is the difference between the ovarian reserve and the enteral follicle count? Uh, uh, sir, ovarian. Sorry sir. How do you do enteral follicle count? By ultrasound. By ultrasound. जी सर. And how do we do that? And when do we do that?
then we go for ultrasound. यस, आपने कराना है किसी का, पेशेंट Hmm. आपके पास आती है, यू वांट टू हैव एन एंटर फॉलिकल काउंट, तो व्हाट विल टेल पेशेंट, क्या करेगी? After we will see the interfollicular count after the menses on the 8th day of menstrual cycle. ऑन द उस साइकिल का पीरियड को कौन सा कहते हैं बेटा? जी सर। उस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड को कौन से पीरियड में आप चेक करते हैं? अगर आप वांट टू गो ऑन द 8th, Follicular phase of cycle, proliferative phase and follicular phase of cycle. इमरान ये बाकी सबकी म्यूट कर दो प्लीज माइक, जी सर मैं करता हूँ। थैंक यू। हाँ Sir, जी, follicular phase of cycle, follicular and proliferative phase of cycle. अच्छा उसमें किस तरह देखते हैं, हाउ डू यू डू दैट, कौन सा अल्ट्रासाउंड But करते हैं? transvaginal ultrasound यू डू अ हम लोग से टीवीएस, करेंगे। जी ओके, सर। और उस पे हमें इंटरफॉलिकुलर काउंट के बारे में पता चलेगा। व्हाट इज अ नॉर्मल एंटर फॉलिकल काउंट? Up to 10 to 12, 10 to 12 what? 8 to 10 sir, normal follicles. 8 to 10 नॉर्मल फॉलिकल्स, जी सर। उसमें उनका कोई साइज भी होता है? हेलो। एक सेकंड, इमरान यार ये दोबारा बंद माइक प्लीज। सर वो मैं करता हूँ, वो दोबारा खुद ही अनेबल कर रही हैं, अब मैं क्या। ये आईटी वालों को ना कोई सिस्टम बनाए जिसमें अगर हम कंट्रोल कर सकें इस चीज को, टॉक टू देम, उससे क्या नाम है इस लड़के का, उससे बात करो या मेरी बात कराना उससे। चलो लेट्स मूव ऑन। हाँ जी सर बोलिए। जो नॉर्मल मेच्योर फॉलिकुलर साइज जो होती है वो अप टू 18 to 20 mm। बेटा ये कौन से टाइम जी पे डे ऑफ द साइकिल पे वो 18 to 20 मिनट होती हैं, और इसमें आपको ये it 10, 12th, that is it on the 12th day of cycle। तो फिर ये आपने कहा कि जी हम ये 8th डे पे करा रहे हैं, इस पे किस साइज हाँ के आपको कितने फॉलिकल्स मिलेंगे? हाँ सर, वो वाला मेचुरेशन वाला तो 12th डे पे होता है, वो वाला सॉरी सर वो वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इज दैट अपना होता है व्हाट यू कॉल दैट, एंटर फॉलिकल काउंट करते हैं कि उसे कुछ और कहते हैं? नहीं। जी बेटा, 12th डे स्कैन को 12 डे स्कैन और एंटर फॉलिकल स्कैन में क्या फर्क है, ये तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। सर 12th डे पे तो हमें एक मेच्योर हम लोग मेच्योर फॉलिकल देखते हैं, दैट इज हम्म 18 to 20 mm। और हम्म, इंटर फॉलिकुलर काउंट में हम लोग देखेंगे कि उसका मतलब कि फॉलिकल्स हैं कितने, ओवीज में कितने फॉलिकल्स हैं। हाँ, जी सर। नहीं आप यू नॉट ट्राइंग टू गेट माय क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू आस्क कि जब आपने एंटर फॉलिकल काउंट करना है तो आप आपने कहा कि आपको 8 से 10 फॉलिकल नजर आने चाहिए, जी सर। ठीक। दूसरा आपने कहा कि उनका साइज मैंने पूछा था वो कितना होना चाहिए? सर मुझे वही मैक्सिमम आ रहा है, सॉरी सर। चलो ओके, व्हाट डज एफएसएच एंड एलएच देन शो? प्रोजेस्टेरॉन तो आपने कहा कि ओवुलेशन बता देता है, इनकी क्या FSH सिग्निफिकेंस? will FSH will shows ovarian reserve इट विल operation। शो द, एंड व्हाट अबाउट एलएच? सर इफ वी आर सस्पेक्टिंग मतलब इफ वी आर सस्पेक्टिंग द पीसीओएस तो हम लोग उसी करवाते हैं कि हम पता चल जाएगा इफ इट इज रेज्ड नॉर्मल मेंज। पीसीओ में क्या होता है? LH is raised as compared to FSH। रेस्ट के बेटा इसकी कोई क्या 2 कहते हैं, ratio 1। LH is more रेशियो, मतलब कि 2 ratio रेशियो 2 चेंज हो ratio 1। जाए। जी सर। कोई और हार्मोन है हाँ जी इसका, सर। फॉर कोई और हार्मोन है जो आप कर सकते हो ओवेरियन रिजर्व के सर लिए? यस सर, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन AMH। वो क्या होता है?
Sir, that will help us to know that ovarian reserve of patient and it is not affected by menstrual cycle. FSH और AMH में से ज्यादा सेंसिटिव कौन सा? Sir, more is MH. फिर आपने AMH क्यों नहीं Because कराया? जी सर, MH कराना चाहिए। जी सर, MH कराना चाहिए था। AMH कराना चाहिए। चलो, अच्छा मुझे अब ये हमने रिजर्व का कर दिया। आपका इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? Sir, differential diagnosis is the fibroid uterus and tubal फाइब्रॉइड and the tubal blockage secondary to previous surgery. ट्यूबल ब्लॉकेज टू सेकेंडरी सर्जरी। Secondary to previous surgery. वो ओके, उसको हम एडिशंस कह दें। जी सर, एडिशन की वजह से हो सकता है। तो कुछ और कहना चाहते हो आप? नहीं नहीं सर, यही है। अच्छा, एक आपने कहा फाइब्रॉइड यूटरस, आपने कहा ट्यूबल एडिशंस, ये और सर यही समझ आया था ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। कोई और आपकी दीदी में? सर वैसे तो पीआईडी भी हो सकता है बट शी हैज नो हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। Why do you think she can't have PID? Yeah, what are the पूछा था features this उसने कहा, patient needs to have? Hmm? पूछा था उसे, उसने कहा था नहीं कोई पानी की शिकायत, मतलब कि इस तरीके से कुछ भी नहीं है, ना ही टेंडरनेस बताई थी उसने। Okay. तो इसीलिए तो पीआईडी नहीं रखा मैंने। और एंड कोई? अगर दूसरा, and endometriosis is also cause of subfertility, but this patient has no history of lower abdominal pain and also no dyspareunia, dysmenorrhea, तो इसीलिए वो भी excluded हो गया। And she has no history of और TB भी हो सकता है, but she has no history of TB in herself, in her family both. ओके, अच्छा चलो, we'll come back to this थोड़ा सा बाद में। um, जो उसकी सर्जरी हुई थी, what was that हाँ जी, and सर्जरी how हुई it थी। is significant to our patient? She had a surgery done, no? जी सर, 16 बैक सर्जरी हुई थी इसकी। 6 years back उसकी सर्जरी हुई थी। 16 What do you think कि उसका रिलेशनशिप ईयर विद बैक, दिस क्या हो सकता ये है? सर जी बेटा। 16 ईयर बैक इसकी हुई थी। 16 ईयर बैक, 16? 16 साल पे। ओके, यस मैं सर, था थॉट 16 कि ईयर बैक। 6, चलो 16 years बैक अगर हुई थी, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक? सर क्योंकि वो बिकॉज ऑफ सर्जरी देयर आर द एडिशंस फॉर्मेशन एंड दैट लीड टू द ट्यूबल ब्लॉकेज, मल्टीपल एडिशंस फॉर्मेशन, उसकी वजह से इसकी ये ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती हैं। और और सर यही है, सर्जरी की वजह से उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, एक ये रीजन आ रहा है समझ में। और उसके बाद इन्फेक्टेड वुंड भी हो गया था, उससे और एडिशंस उसकी बढ़ जाएंगे। उससे और क्या हो सकता है अगर लेट्स सपोज का इन्फेक्टिव वुंड था और ये सारी चीजें थी? सर एडिशंस हो जाएंगी ना, उससे फाइब्रोसिस होगी, एडिशंस होंगी, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएंगी। Why do you think she had an what do you call that intestinal obstruction at the age of 21? Sir, उसकी क्या रीजन? she said initially I was having fever that was of 102, 104 degrees Fahrenheit, and after that I was having the abdominal pain, so I was shifted to a hospital, and they were saying that you have the intestinal, मतलब you have gut perforation, so they proceed for laparotomy, and that was due to typhoid fever. And that was due to typhoid fever. ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी? हाँ सर, वो मैंने सर्जिकल इसमें बताई ये वाली बात।
टाइफाइड का भी बताया था आपने? हाँ, मैंने यही बताया कि इन द सर्जिकल हिस्ट्री शी हैज हिस्ट्री ऑफ लेप्रोटमी ड्यू टू इंटेस्टिनल परफोरेशन आफ्टर टाइफाइड फीवर 16 ईयर बैक। सर्जिकल हिस्ट्री में ये मैंने ऐड किया मैंने वो था। नहीं सुना। अच्छा, मुझे आप हाँ ये बताओ एग्जामिनेशन के अंदर, उसके बाद हम मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन एन ओवेरियन मास एंड यूट्राइन मास? Sir, the uterine mass is felt in the midline, and the lower limit is not reachable in the uterine mass. And cervical movements are transmitted on vaginal examination. Cervical movements are transmitted to that mass. ओके, While that of in the ovarian mass, cervical movements are not transmitted. Lower limit is reachable. तो आपने तो मुझे जब इसकी एग्जामिनेशन में बताया कि लोअर लिमिट इसकी रीचेबल है, और डीडी के अंदर जो आपने ओवेरियन का जिक्र नहीं किया, व्हाई इज दैट? सही सर, रख सकते हैं क्या रख सकते हैं क्योंकि बेटा? यस सर, रख सकते हैं कि मतलब कि ओवेरियन मैस भी हो सकता है या सबसीरोजल फाइब्रॉइड भी हो सकता है। यस, ये दोनों तो बिल्कुल हो सकते हैं। जी और क्या हो जी सकता है? सर, ओवेरियन मैस और सबसीरोजल अच्छा, चलो जी, अब नॉन मैनेजमेंट में आ गैस्ट्रोलॉजिकल मैस। जाते सर, हैं। चलो अल्ट्रासाउंड की लेट्स रिपोर्ट लेट्स बस। बेटा, बेल बज गई है, अब आगे चलते हैं। अच्छा अल्ट्रासाउंड सॉरी। की रिपोर्ट अभी आप बता दो और आगे चलो। Sir, before going to management, I want to complete my missing investigation. I want to know report of HSG and ultrasound report of my एचएसजी patient. आपके पास है, हाँ जी जिसमें सर। बायोलेक्ट्रिक ब्लॉकेज है और हाइड्रोसल्फिंक्स हाँ जी सर। है। और अल्ट्रासाउंड आप बता दो। And the ultrasound was done in the 17th of March 17 April 2021. Uterus anteverted, bulky, 14.7 into 9.2. Uterine size, heterogeneous texture in the myometrium, and the multiple heterogeneous mass is seen in the uterus. Largest is in the posterior wall, 9.4 into 7.4 centimeter, and the endometrium is ill-defined. चलो गुड, अब बताओ क्या करें। Sir, इसमें वैसे the एडिनेक्सा patient. का, इसमें एडिनेक्सा का भी जिक्र किया होगा Sir, एक second. एडनिक्सा पे नहीं है सर। एडनिक्सा पे नहीं है, ओवरीज पे लिखा हुआ है कि ओवरीज आर ओवरीज 3.7 कहाँ इंटू पे 1. होती है बेटा? ओवरीज हाँ कहाँ पे सर, होती है? मतलब कि मेरे वो मैं फिलोपियन ट्यूब समझी, सॉरी सर। कैन वी सी राइट। फ्लोपिंग ट्यूब? कैन वी सी फ्लोपिंग नो ट्यूब नो ऑन अल्ट्रासाउंड? नो नो सर, राइट ओवरी is 3.5 into 1.7 with no major cyst seen, and the multiple follicles are seen. Right ovary, multiple follicles are seen, और left ovary में भी multiple follicles हैं सर। Largest one is 2.3 into 1.9. अच्छा ठीक, अब बताओ आगे क्या करेंगे। जी सर। मैनेजमेंट जी बेटा, सर। हाउ विल यू मैनेज दिस केस? Yes, sir. I admit it and explain the diagnosis to couple. They are metal tubal blockage, thing, and so the fibrosis, there is a benign fibrosis is a benign condition, and fibroid आपका uterus is a benign condition, and बेटा, होल्ड ऑन, हैव योर हाँ जी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस चेंज्ड और सेम? sir. Differential diagnosis is bilateral tubal blockage with hydrosulfing and fibroid uterus both. इसके अलावा कोई और है आपके ज़हन में? ओके, चलो जी, लेट्स मूव ऑन। कैसे आगे कैसे चलें? Sir, and then I will counsel her as she is 37-year old and she is concerned about the subfertility. So I will explain about explain about the option that include the IVF, and adoption is only option for her for subfertility.
Only option for support for this is IVF and adoption. And So the only then option she has sir, is नहीं आपने इनको ऑप्शन दिए कि जी only option is adoption and IVF. IVF. Ji sir, because her tube Okay, then both why tubes have you are admitted blocked and me? both are. नहीं, I Sir, agree with then you, I will beta, but explain that. That's why I will explain her that नहीं, IVF success hold on, rate of IVF hold, is reduced hold, in presence of. hold on, मेरी बात सुनो. You said कि our only option is IVF and adoption. Okay, that is fine. Then why have we admitted this patient? And sir, Why because do of we need to admit a patient for success, adoption or IVF? she also needed prophylactic self-injectomy. So prophylactic self-injectomy and myomectomy. So I will explain her that Why success rate do of we? IVF is reduced in. या बेटा अगलों को थोड़ा टाइम देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए ताकि आप उसका जवाब दे सको. Why do you plan to have a self-injectomy done or myomectomy? Sir, because it will improve the success rate of IVF, and that will be reduced in presence of both of these. Okay. Yes, sir. अच्छा. You think he is willing to have an IVF? Sir, I will explain her. मतलब कि these are only two method, and then अब उसकी choice होगी If कि वो she क्या says, choose if करे. she says I don't want to have an IVF, then what? If she don't want to have, then another option is adoption for her. Okay, if she opts for adoption, then what will we do? If she opt for adoption, sir, हाँ वहाँ से जी. नहीं. If she adopts, wants, let's okay, let's have an adoption. I want to have an adoption. So what will we do? Sir, बस for adopt it. मतलब कि she don't want further treatment means we do not have need for self injectme as she is symptom free and कुछ भी फिर हम लोग नहीं करेंगे इसके लिए. फिर जो आपने इतने सारे टेस्ट किए उसके और उसके बाद उसको दाखिल भी किया, उसका क्या फायदा हुआ? पर सर अब अगर उसने एडॉप्शन ऑप्ट कर लिया तो फिर तो पर सर सिम्टम्स ही नहीं है ना तो हम लोग उसको क्यों ट्रीट करेंगे. नहीं तो आप ही नहीं किया बेटा, मैंने तो नहीं किया. आप यू सेड कि मैं आई एम गोना एडमिट द पेशेंट और Yes sir, मैं I admit her because of this procedure, self-injectomy and myomectomy. But if she is not willing for IVF, then there is no need of these. ओके. अच्छा, Because लेट्स she is a सपोज sir. कि ये पेशेंट जो है कहती है ठीक है कि मैं आईवीएफ कराना चाहती हूँ, देन हाउ विल यू प्रोसीड? Sir, before going to IVF, we will go for profile. I will explain her that there is a need for the prophylactic self-injectomy and myomectomy that will improve success rate of IVF. So I will take informed consent from her and arrange 2 units of blood and take anesthesia fitness and prepare her for surgery. And I will keep a What kind surgeon of on board surgery will also. you do? What kind of Sir, surgery I will you will, do? sir, I will go for laparotomy Okay. because she अच्छा, has the previous midline surgery. That's why laparoscopy will be difficult in that case. So I will go for laparotomy. ओके. लेप्रोटमी आप किस तरह करोगे? लेप्रोटमी मतलब क्या प्रोसीड कैसे करेंगे कहना चाह रहे यस. हैं. Sir, by as she has a mass of 16 week size, so I will go for the financial scar, through financial scar. फेनिसिन स्कार. ओके, वी गिव द फेनिसिन जी सर. स्कार. आगे आगे Then sir, after opening of abdomen, I will ओपन inspect the करते हो all आगे the. फ्यूजन पेल्विस होता है, कुछ नजर नहीं आता. व्हाट इज कुछ नजर नहीं आता. कुछ नजर नहीं आता.
हाँ सर, because of adhesions. हाँ, yes sir. Initially, I was suspecting that there are the adhesion, so I will also keep a surgeon on board. That will help सर्जन in सारे छुट्टी पे गए visualize. नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं है आज तो। अब क्या करेंगे? Sir, और जहाँ काम कर surgeons. वहाँ पे सर्जन अवेलेबल। तो क्या करें? सर ओपन ही उस सेटअप में होगी जहाँ पे मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इज प्रेजेंट। आपने तो ये बताया ही नहीं पहले प्रोसेस। सही, हाँ, ऐसे सोचा यही था पर बताया नहीं था जी। नहीं, सोचने से तो चीजें एग्जामिनर तक नहीं पहुंची ना। यू हैव टू। बता के बताना जरूरी है। सर मैंने सर्जन ऑन बोर्ड रखे थे तभी तो मुझे लगा कि वो बात बतानी नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बताई सारी। ओके, सर्जन भी आ कहता है कि आपका इंसुलिन गलत है। अब बताया मैंने क्या करना, मैंने तो हेडलाइन जाना, तो क्या करेंगे? नहीं सर, सर सवाल नहीं समझी मैं आपका, सॉरी। सर्जन भी आ जाता है एंड ही लुक्स एट द इंसिजन, ही सेज कि जी तो इंसिजन गलत है, इससे तो मैं अप्रोच नहीं कर सकता, मैंने तो मिडलाइन खोलना। तो क्या करें? सर फिर वो तो मिडलाइन मतलब कि टी शेप, इन्वर्टेड टी शेप इसका बना देंगे फिर वो तो। यस सर। चलो, हमने टी शर्ट भी बना दिया और आगे इंटेस्टाइन की इंजरी हो जाती है करते। जी सर। मतलब कि इनिशियली सर जब मैं उसकी कंसेंट ले रही थी ना तो मैंने कंसेंट में लिखा था कि आई विल एक्सप्लेन हर दैट देयर विल बी द इंक्रीज ब्लड लॉस एंड नीड ऑफ एपिजोलाइसिस एंड नीड ऑफ एंड डैमेज ये टू तो मुझे तो एडजेसेंट नहीं पता स्ट्रक्चर। चला। सर मैंने सिर्फ जस्ट अभी ये बताया कि एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैंने आपको ये बताया बेटा कि मैं आपने तो कंसेंट इंसिजन लूंगी। दे दिया था, मैं तो इंसिजन के बाद की बात कर रहा हूँ आपसे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे नीड टू कम इन अर्लियर रादर देन आफ्टर यू। क्या पेशेंट को जगा के बताएंगे? नहीं सर, पहले लिए मैंने लिखे हैं ऐसे सब सीक्वेंस ऐसे ही लिखिए पर किसको लिख के दिया कि आपने? पहले नहीं अपने मतलब कि सोचा ऐसे ही था। बेटा फिर आप एग्जाम में मत जाना, पेपर भिजवा देना, उन्हें कहना जी मुझे इसी पे अपना डिग्री दे दें प्लीज, मैंने तो सब कुछ लिख के दे दिया आपको। सॉरी मतलब सर। आप हाउ आर यू, मतलब है कि किस किस्म की मुझसे आप मैनेजमेंट की, आप मुझसे बहस कर रहे हो कि जी मैंने तो सोचा हुआ था इसलिए ये तो मैंने कर दिया, आप मुझसे ही क्यों सवाल पूछ रहे हो? जी सर, सॉरी सर। नहीं, आप एग्जामिनर को अगर ये कहोगे कि जी मैं तो सब कुछ पहले सोचा हुआ है तो वो तो मैं, तो अगले ये कहेगा कि ठीक है बेटा घर बैठ के अपने पेपर भिजवा दो अपनी मैनेजमेंट इसकी, हम आपको घर पे ही सीपीएसपी को अपना रिक्वेस्ट कर देते हैं कि तुमको डिग्री को भिजवा दो। इफ यू डोंट से एनीथिंग या नहीं बताओगे तो एग्जामिनर्स तो विल इमेजिन कि ये सारी चीजें नहीं हुई। जी सर, सॉरी। अच्छा, हम आगे चले जाते हैं, लेट्स सपोज आपने फेंसिंग दिया, आगे किया और यूट्रस के अंदर आपको डीनोमाइसिस मिली, ठीक है करो। सर एडिनोमायोसिस का तो सर उस वक्त तो कोई ऐसा तो सर्जरी तो सर डेफिनेटली सर्जरी फॉर एडिनोमायोसिस इज हिस्टेक्टमी, पर इस एज में हम लोग इसकी हिस्टेक्टमी तो नहीं कराएंगे। मतलब मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, नाउ यू फाइंड आउट कि दिस पेशेंट हैज एडिनोमायोसिस, अब व्हाट विल, हाउ विल यू प्रोसीड? आपने सीन दिया फाइब्रॉइड की जगह एडिनोमायोसिस आ जाता है, तो क्या करें? सर नहीं सर, एडिनोमायोसिस के लिए तो सर्जरी नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने उससे हिस्टेक्टमी की कंसेंट फिर नहीं ली थी और मैं दोबारा हिस्टेक्टमी करा। पेशेंट को, नहीं फिर बेटा दोबारा पेशेंट को जगा के चेकअप की कंसेंट ले लेंगे। सर इस चीज द फर्टिलिटी कंसर्न को तो हिस्टेक्टमी के लिए वैसे भी प्रोसीड नहीं कराऊंगी। फिर आप क्या करोगे आप? सर एनेस्थीसिया वाला क्या रहा है, डॉक्टर साहब जल्दी करें, हमने कुछ और भी काम कर रहे हैं, क्या आप आगे कि हम जगा दें मरीज को? सर हिस्टेक्टमी तो नहीं कराऊंगी पर चेकअप कर लो। नहीं सर, नहीं कराऊंगी। नहीं करोगे? नहीं सर, वो तो नहीं करूंगी।
आगे फिर क्या करेंगे? अगर चेक ही नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे कि नहीं कुछ करेंगे? सर अगर हमने तो मतलब कि चेक करूंगी फॉर ट्यूब्स को देखूंगी और कैसे चेक करोगे ट्यूब्स को? जी सर हाउ विल यू चेक द ट्यूब्स? असेस करूंगी ना ट्यूब्स का टेक्सचर, मतलब कि दे आर नॉर्मल लुकिंग बिकॉज दे वाज ये शोइंग तो नजर ही नहीं आ हेपेटाइटिस। रही, डिशेस में नजर नहीं आ रही, मुश्किल से आपको ये नजर आया था? आपने सेम दिया उस पे एडिनोमाइसिस आ गई। नहीं सर फिर तो हम्म, सर चलो बेल बज गई, हमारा टाइम पूरा हो सॉरी सर। गया। अब आप मुझे बताओ, आपका सर गड़बड़ हो गई सारी। सारी गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्यों हुई? हम्म, शायद अच्छा जो चलो, मैंने गड़बड़ सोचा था इधर वो इधर इधर रहना बेटा, इधर। लेट्स सपोज इसमें आपके नंबर कितने आने चाहिए? 0 से 10। 6 वाला पास होता है, 5 वाला बॉर्डर लाइन होता है, 4 वाला फेल होता है, 8 वाले को डिस्टिंक्शन मिलती है। नॉर्मली ये हमारी वहाँ पे स्कोरिंग होती है। वेयर डू यू जी थिंक सर। यू स्टैंड बिटवीन 0 एंड 10? या अगर आप एग्जामिनर हो और इस तरह का वाइवा हो तो आप कितने नंबर लगाओ? अच्छे तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। अच्छे कितने होते हैं? अच्छे नहीं होंगे तो कितने होंगे? सर वो मैं किसे बता सकती क्यों बता सकते? एक आपको सेल्फ आइडिया तो होता है कि एग्जाम के साथ कि जब आप दे रहे होते हो कि जी पेपर मेरे कितने नंबर आएंगे। हूँ। जी सर। बताओ फिर आप। नहीं है तो मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछ लेते हैं कि जी कितने नंबर लगने चाहिए। जी सर। 4, 5, बिलो 5, 3। ये तो बहुत ही जालिम है। आपकी कोई सहेली नहीं बैठी हुई इस पूरे में? सर सहेली भी गलत थोड़ी करेगी। वही तो सपोर्ट करेगी, और कौन सपोर्ट करेगी? मेरा दोस्त बैठा हो, मैं तो गलत। उसको फौरन कहूँगी इसको तो 8 नंबर मिलने चाहिए। चलो लेट्स मूव ऑन। जी सर। देखो, where do you think you went wrong? आपकी जी कहाँ पे गलती हुई? Where do you think you, हम इस बारे में you went wrong, या क्या चीज़ आप चेंज करना चाहोगे? सर शायद मैंने ना स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था कि मतलब क्या है दीज टू ऑप्शंस फॉर आईवीएफ एंड एडॉप्शन, वहाँ पे ही अटक गया। बिकॉज मतलब कि मुझे इनिशियली यही बताना था कि मतलब कि आफ्टर एक्सप्लेनिंग अबाउट द डायग्नोसिस देन आई हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट इज सेल्फ इंजेक्टमी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ both these finding treatment option is self injectemy and myomectomy. ओके, जी सर। एंड देन आई हैव टू वो टोल्ड हर सेकंड अबाउट। पार्ट है बेटा, उससे पहले भी की हमारी कोई बहुत बड़ी गलती हुई। जी सर क्या सर? उससे पहले भी आप ठीक कह रहे हो। वो आपकी मैनेजमेंट ही, जब आपने स्टार्ट ही आईवीएफ और एडॉप्शन से किया और पेशेंट को एडमिट कर दिया है, हाँ। या तो आप एडमिशन से पहले उससे बात करो। जी सर। एडमिट करने के बाद अगले दिन सुबह उठ के तो नहीं आप कहोगे कि जी सारे हमने आपके टेस्ट भी करा लिए, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, जी आप सर। जाके अपना डॉक्टर के लिए ईडी सेंटर में चले जाओ। दिस इज नॉट फेयर एट दैट टाइम। और हाँ जी सर, पहले एडमिट नहीं करना, दूसरा पहले सब कुछ। हाँ, दूसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात था, आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही ठीक नहीं, कंप्लीट नहीं था। अच्छा जी सर। यू डिड नॉट हैव अ कंप्लीट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देखो, एक मेरी बात ये याद रखो, जिसमें पहले इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री होती है, हाँ जी। उसमें पेशेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होनी चाहिए जो आपने फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। इसमें तो चलो टाइफाइड हो गया, उसकी परफेक्शन होगी, परफेक्शन के बाद अंदर क्या बन जाता है सारा, एडिशंस हो जाएंगी सारी सर। सारी इनकी मिड लाइन अगर जिसकी सर्जरी हुई है उसकी चांसेस ऑफ अदर रीजन होना,
और साथ अगर और आपके साथ आपने उसके आपने HSG बता दिया मुझे कि जी उसकी ब्लॉक ट्यूब्स हैं, और साथ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट बात है जिस पे आपने बिल्कुल ही कंसंट्रेट नहीं किया, वो हाइड्रोसेल्फिक्स है। What does an hydrosalpinx in a patient, what does that show? एक पेशेंट आपकी है जो आपको एक एक्सरे दिखाती है आके, और जिसमें आपने उसमें दिखा दिया कि जी ये हाइड्रोसेल्फिक्स आ गई, दोनों साइड की ब्लॉक ट्यूब्स हैं, आपके कुछ आपको नहीं पता, तो पहले आपके ज़हन में क्या चीज़ आती है? infection, she must have history of infection previously. ओके, एक आपकी इन्फेक्शन PID आ गया, ठीक है। She must have history of TB, पर सर वो भी इसको नहीं थी, that will also leads to this. नहीं देखो, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी DD में आनी चाहिए बेटा, पेशेंट को ओके है या सर। नहीं है तो नहीं है। अगर इस किस्म के पेशेंट जिसकी ये होगी और आप PID नहीं डालोगे, वो भी मेरे पूछने पे आपने ऐड ऑन किया था, तो बात ये है कि इतनी ऑब्स्ट्रक्शन, ये वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी PID में आनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिर देन PID का वर्कअप भी पूरा होना चाहिए, और उसकी कम जी से कम सर। हिस्ट्री में डिटेल आनी चाहिए। उसको कोई डिस्चार्ज है, TLC रेज़्ड है, CRP का क्या कंडीशन होनी चाहिए, व्हाट नॉट, या फिर जी उसका सर। ट्रीटमेंट दिया कि नहीं दिया, फीवर और ये वो। और इसी तरह ये बार-बार मैं ये मैसेज पढ़ रहा था, इसमें सबको बड़ा शौक है ट्यूबरकुलोसिस ऐड ऑन करने का, एंड व्हिच इज़ ऑन देयर पॉइंट, आई थिंक दैट इज़ राइट। ट्यूबरकुलोसिस could be और a pelvic, but it won't be a generalized लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगी, इट विल बी pelvic ट्यूबरकुलोसिस, अगर बोलोगे तो उसमें हो सकता है। क्योंकि यस दिस जो सर। हाइड्रोसेल्फिंग्स है, दिस वेरी वेल कुड बी पायोसेल्फिंग्स एज़ वेल, वो तो अंदर जाओगे तो पता चलेगा। तीसरा इसी को लेते हुए जब आप आगे जा रहे हो, अ, हमारा ऑब्सेप्शन हो गया, PID हो गया, ट्यूबल एडिशंस आपने कहा कि चलो ठीक है, वो मुझे बात समझ आता है। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी, उसमें जो ज़्यादा एम्फसाइज करना है डिस्मेनोरिया, हाँ डिस्पाइरोनिया, जी सर। उसकी आपने कोई डिटेल मुझे हिस्ट्री नहीं बताई। तो सर मैंने कहा उसको कोई हिस्ट्री नहीं थी, मैंने पूछा था, उसने मना किया मुझे था। देखा, जो चीज़ मैंने नहीं सुनी वो नहीं आया, अच्छा, मैंने जो बताई चीज़ थी आपने वैसे अपने हिस्ट्री। ज़हन में सोच लिया है वो ज़हन तक नहीं नहीं नहीं, पहुँची, मैंने हिस्ट्री। जो मैंने नहीं सुनी वो हाँ मैंने नहीं लिखा, जो मैंने सर, नहीं आवाज़ लिखा की वजह उसको से आप। आपको नहीं। चलो, जी जी सर। जी सर। दूसरा, whenever there is a mass इन द abdomen, जो 16 वीक्स का मैस आपका आता है, उसमें अगर आप ओवेरियन पैथोलॉजी अपनी डिफरेंशियल से निकाल दोगे तो कहानी ही बदल जाएगी। विद ये फर्टिलिटी इश्यूज, विद मैस, एंड जो आपने कहा कि जी स्मूथ है, काउंटर है, उसमें अगर आप एडिनोमाइसिस नहीं ऐड ऑन करोगे तो फिर तो आप फंस जाओगे। टिपिकल एक हिस्ट्री जिसमें फर्टिलिटी की हिस्ट्री आ रही है, उसमें ये आ रहा है, और उसमें आप एडिनोमाइसिस अपने डिफरेंशियल में नहीं डालोगे तो यस, इवन से 16 क्या, मैंने इवन इससे बड़े बड़े भी एडिनोमाइसिस के देखे, और जो उसका अल्ट्रासाउंड पढ़ो अगर आप, उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ जरा। Sir, uterus is anteverted bulky 14.7 into 9.2, हाँ heterogeneous texture in myometrium, हाँ, and व्हाट डज multiple दैट शो? heterogeneous. Yes sir. ये किस पे जाता है? अगर आपसे इससे यही डिफरेंशियल पूछा जाएगा तो किस पे जाएगा? adenomyosis. एडिनोमाइसिस में जाएगी, और अगर उसका एडिनोमाइसिस आ जाता है और इस पे शक है, तो अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आगे जा रहे हो तो उसको कंफर्म कैसे करते हैं प्री ऑपरेटिवली? सर adenomyosis की डायग्नोसिस तो ऑन द बेसिस ऑफ वही होती है, हिस्टोपैथोलॉजी ओके, होती है प्री ऑपरेटिव। और यस सर। तो और इन्वेस्टिगेशंस है, MRI। MRI यस इज सर, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग confirmatory will be पैरामीटर। MRI। हाँ, और MRI अगर आ जाता है, MRI में सपोज आ जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दूसरी इम्पोर्टेंट आ जाती है कि ऑल दीज थिंग्स कम्स इन, जो आप सर्जरी से पहले पेशेंट को बताओगे कि जी पॉसिबिलिटी है, उस टाइम आप डिस्कस करोगे। ही इज़ अ लकी पेशेंट जो पेन के साथ आपको नहीं आई, आपको प्रॉब्लम होती, अगर ये पेन के साथ आती, साथ आपका एडिनोमाइसिस आ जाता और साथ फर्टिलिटी इशू होता। जी सर। वी डू अंडरस्टैंड फॉर दोज पेशेंट, अगर वो पेन के लिए ज़्यादा कंसर्न है तो फिर उसकी मैनेजमेंट विल बी डिफरेंट,
अगर उसका फर्टिलिटी की डिजायर अभी है और पेन की है तो फिर उसकी काउंसलिंग थेरेपी। तीसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने अपने पूरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं डाली, वो सूडोमैस है। सूडोमैस क्या अच्छा। होता है, जो आफ्टर इतनी बड़ी मिड लाइन सर्जरी के बाद कैन फॉर्म अ सूडोमैस, इसमें आपके एब्डोमिनल पेल्विस के अंदर इस तरह का कनेक्शन करके बना सकता है। मैं नहीं कह रहा कि होगा ये, पर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैज टू कम इन। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन सब के बेसिस के ऊपर आप उसकी मैनेजमेंट प्लान करोगे। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स के लिए जहाँ पे आपने ये लिपोटमी करनी है, किस इंसिजन कौन सा देना है, कौन सी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में से आपने किस किस को साथ बुलाना है और आगे किस तरह लेके चलना है, दिस विल ऑल कम डाउन टू दिस थिंग। जी यू सर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यू डोंट अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर, आई आपकी गॉट इट। जो गलती आपकी हुई है, वो आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं ठीक था। जब वो डिफरेंशियल ठीक में आप सारी चीजें मिस कर जाते हो, तो फिर आगे मैनेजमेंट प्लान खराब हो जाता है। इन सर 90% ऑफ एक्चुअली एक सवाल, सिर्फ एक सवाल था यहाँ पे सर। अगर हमें कोई सिम्टम्स नहीं बता रही हैं, ना ही विजाइनल डिस्चार्ज, ना डिस्मेनोरिया, ना डिस्पेरिया, फिर भी हम लोग फिर पीआईडी और ये वाली चीजें डालेंगे, इसीलिए मैंने नहीं डाली थी सर। नहीं, देखो, इस दिस केस जिसके अंदर वूंड इन्फेक्शन हुई हुई है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की उसकी हिस्ट्री है, मिड लाइन उसका हुआ है, उसमें आप पीआईडी विल नॉट बी ऑन द टॉप ऑफ योर लिस्ट, लेकिन इट विल बी ऑन द लिस्ट। मतलब कि डालेंगे वैसे, बस नहीं, इसी वजह से हाँ, मैंने नहीं डाला था। नहीं, ठीक है, आई एग्री। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह ये बता रहे हैं कि आपके एक्सरे के अंदर हाइड्रोसेल्फिंग्स भी तो आ गया ना, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ पीआईडी। जी सर। अगर आपका लेस्पोस एक्सरे बिल्कुल ठीक होता है और उसमें डैशफिल पॉजिटिव आ जाती, फिर हम क्या करते? फिर कहानी फर्क हो जानी थी। जी हाइड्रोसेल्फिंग्स का सर। अगर पीडी आ जाता है, हाइड्रोसेल्फिंग्स अगर आता है तो डिफरेंशियल में क्या पीडी नहीं डालोगे आप? सर डालेंगे फिर। जी सर। डालोगे ना, उसके बगैर तो आपका मतलब वो हाँ। आपका ट्रेनर निकलने नहीं देगा बेटा बेटा वहाँ से, क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता कि हाइड्रोसेल्फिंग्स किस किस वजह से होता है। इट कुड हैव बीन बिकॉज ऑफ एडिशंस, इट कुड हैव बीन बिकॉज ऑफ सुडोमैस, इट कुड हैव बीन बिकॉज ऑफ पीआईडी, पर वो आपको उसमें ऐड ऑन जरूर करना पड़ेगा। जी सर। हाँ एज अ सर, बस होल, समझ गई। ठीक। और इसी तरह जब आपका उसका मैथ्स है, हाउ कैन यू मिस ओवेरियन और की पैथोलॉजी? बिल्कुल ये। और जब ओवेरियन की पूछेंगे ऐसे किस्म के पेशेंट के अंदर, मे बी आप एंडोमेट्रोसिस डालोगे। फिर जब आपको एंडोमेट्रोसिस का सस्पिशन है इस किस्म के पेशेंट में, फिर आप प्री ऑपरेटिवली यू हैव टू हैव CA 125 जी वर्कअप के लिए सर। कर रहे हो ना आप। जी सर। और जब भी आपने ये फर्टिलिटी की हिस्ट्री ले रहे होते हो, आपने मुझे सिर्फ बताया कि उसकी क्वार्टर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस अ वीक है। उसके अलावा कुछ हाँ क्वार्टर्स के बारे में नहीं बताया कि क्वार्टर्स प्रॉपर्ली होता है नहीं होता, कोई इसका इशू तो नहीं है। दैट हैज टू बी सही। आल्सो वहाँ पे अपनी हिस्ट्री के अंदर आपको इसको नीड टू ऐड ऑन टू दैट, हम्म। क्योंकि उसके जी बगैर सर। फर्टिलिटी की नहीं। अगर लेट्स सपोज उसको निकल आता है कि हाँ जी हमारा क्वार्टर्स ही उसको कोई मे बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है या कुछ और हो जाता है, लेकिन उसकी सारी डिटेल आपने ज़रूर पूछनी है ताकि उसकी मैनेजमेंट प्लान के साथ आप उसको कर सको। अगर वो सारा कुछ नहीं है, देन सेमेन एनालिसिस फाइन। अगर उसको कोई और डिसफंक्शन हो जाता है तो फिर उसकी इवैल्यूएशन भी आपने इसके साथ साथ करनी है। और पॉसिबल अगर पॉसिबल है एग्जाम में तो शायद नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप कर रहे होते हो तो ऐसे पेशेंट का एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन मेल पार्टनर की भी जरूरी है। जी सर। और ये इस किस्म के पेशेंट्स में, यस, लेप्रोस्कोपी कैन बी डन। आज नहीं लगेगा ब्लड, तब लगेगा आप जब डोनेशन दोगे, फिर मैं उस पे दे दूंगी। बेटा ब्लड की तो हमने जिक्र ही नहीं किया अभी। नहीं, ये लगेंगे बाकी फ्री में, वो एक डोनेशन देना इमरान, पड़ेगा। जी सर। यार प्लीज इसको म्यूट करो। अच्छा, हम कहाँ पे थे? सही यही आप क्वार्टर फ्रीक्वेंसी का बता रहे थे जो मेरे स्ट्रेस हाँ, वाली। अगर उसमें कोई इशू नहीं आता, क्वार्टर्स इशू नहीं आते, देन सेम एनालिसिस एट दिस फ्रेश वाला, दैट इज इट। पर अगर आते हैं तो जाहिर है फिर उसकी वर्कअप या पूरा फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
करोगे। अब अगर इसमें आपकी कोई क्वेश्चन हैं तो बताओ। स्टिल हैव 5 मिनट्स नाउ, ताकि उसके बाद सर अगर हम लोग मायोमेक्टमी इसमें प्रोसीड करेंगे, ये वाला भी थोड़ा सा इशू था कि पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, एचएमबी की भी हिस्ट्री नहीं है उसको, और 9.4 का जो मेस मतलब कि इतना बड़ा जो है फाइब्रॉइड है, तो हम लोग जाएंगे मायोमेक्टमी करेंगे इस पेशेंट में बिफोर गोइंग टू, अगर इफ वी आर प्लानिंग फॉर आईवीएफ तो प्लान करेंगे हम लोग। बेटा आईवीएफ के अंदर सिंपल सी उनकी सीधी सीधी गाइडलाइंस हैं। If a fibroid is more than 5 centimeters, it has to be removed. Unless and until वो बिल्कुल ही कोई करंट रिलेटेड या वो, लेकिन करंट रिलेटेड वाले को भी वो कहते हैं कि जी आप निकाल दें बिफोर गोइंग टू आईवीएफ। उसको 2 रीजन होते हैं। नंबर 1, इस किस्म के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे होते हो तो यूट्रस को उसकी नॉर्मल नेटवर्क को खराब कर देते हैं, फुल कर देते हैं। उसकी वजह से आपका उसका सक्सेस रेट गोज डाउन। इसलिए आइडली स्पीकिंग इस तरह की जो फाइब्रॉइड्स हैं विच इज मोर देन 5 और प्लस मोर देन 5, उसमें आपको मायोमेक्टमी आइदर लेप्रोस्कोपिकली और ओपन करके फिर देन यू मूव ऑन टू दैट। एंड यस, अगर हाइड्रोसल्फिंग है, हाइड्रोसल्फिंग से पहले सेल्फ-इंजेक्टमी करना इज द आइडियल चॉइस। लेकिन उसको करने से पहले यू हैव टू टेल द पेशेंट कि अगर मैं बायलैटरल सेल्फ-इंजेक्टमी या उसकी क्लिपिंग करता हूँ तो आपकी एवरी टाइम यू वांट टू हैव अ बेबी, नॉर्मल बेबीज नहीं होंगे। इट हैज टू बी अ प्रोसीजर जो आईवीएफ के साथ आप कर सकते हो, चाहे वो सक्सेसफुल है चाहे अनसक्सेसफुल है। इट कैनॉट अप टिल नाउ बी अनडन, दोबारा नहीं किया जा सकता या ट्यूबल नई चीज नहीं लग सकती। चलो उसके बाद करते हुए और आपका कोई क्वेश्चन है बताओ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पेशेंट मैंने भी देखा था एंड मेरा जिसमें कंफ्यूजन मुझे मैनेजमेंट में हो रहा था दैट वाज कि द पेशेंट आईवीएफ में ऑफ नहीं करती एंड वी ओपन दिस पेशेंट बिफोर काउंसलिंग कि हम कंफर्म करेंगे अपनी फाइंडिंग्स एंड देन वी विल फाइनली डिसाइड एंड ऑन ओपनिंग शी इज हैविंग बायलेटरल हाइड्रोसल्फिंग देन ये एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है बट इट इज ऑफ 8 to 9 सेंटीमीटर, तो फिर हम इसे मायोमेक्टमी करें या ना करें? मैं तो 100% करूंगा बेटा। अगर आपने ओपन किया हुआ है, व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट डूइंग ए मायोमेक्टमी? सर यही मुझे कंफ्यूजन था कि दोनों साइड पे मेरे प्रॉस एंड कॉन्स हो रहे थे कि यानी उसका हाइड्रोसल्फिंग भी है। अब अगर मायोमेक्टमी मैंने कर दी तो आईवीएफ के लिए नहीं जा सकती, तो फिर मैं मायोमेक्टमी करूं या नहीं करूं क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है। बेटा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड जिसको आपने प्री ऑपरेटिवली डायग्नोज किया हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फाइब्रॉइड जिसको आपने एब्डोमेन ओपन करके अब ड्यूरिंग सर्जरी देख रहे हो। व्हाट विल हैपन विद दिस फाइब्रॉइड? इसको आप अगर एग्जाम में भी कहते हो कि जी वी नीड टू टेक इट आउट, उसकी वो पूछेगा जी क्या आप क्यों, लेट्स सपोज एग्जामिनर कहता है कि जी आप ये जो नॉन सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, इसकी निकालने की रीजन क्या है? आई थिंक द इजीएस्ट आंसर वुड बी दैट कि जी द फाइब्रॉइड्स दे कीप ऑन ग्रोइंग till the age of menopause and she is at 35 37 years of let's suppose age है, तो still has about 3 40 और 10 13 years to go, और which he already has a surgery done जो पहले मिडलाइन हुई थी, सेकंड हम कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रूट या जिस मर्जी रूट से कर रहे हैं। अगली इसकी सर्जरी मुश्किल होगी अगर ये बड़ा होता जाएगा और सब सिम्टोमेटिक होगा, तो वी विल नॉट ऑप्ट फॉर द थर्ड सर्जरी। इट इज बेटर कि वी रिमूव इट देयर एंड देन एट दैट टाइम। आगे एग्जामिनर कहता है, मैं बता आगे मैं अगला सवाल बता देता हूँ। वो कहता है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा शुरू होगी, आप क्या करेंगे? ड्यूरिंग एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड कर रहे हो आप, अब क्या करोगे? पेशेंट स्टार्ट्स ब्लीडिंग हेवीली। सर अगर हमने बिफोर हैंड उससे कंसर्न लिया होगा सारी चीज़ों का कि जो है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है अनकंट्रोल्ड है तो इट माइट एंडेड अप इन टीएस, तो फिर सर लाइफ सेविंग करने के लिए पहले हम अपने सारे स्टेप जो है वो सारे करेंगे। नहीं देखो ना, यही बातें प्री ऑपरेटिवली आपने उसको बता दी, इंट्रा ऑपरेटिवली आप मुझे बताओ कि पेशेंट हेवीली ब्लीड कर रहा है, आप क्या करें?
सर अगर लाइफ सेविंग है तो फिर तो टीएच करना पड़ेगा अगर लाइफ थ्रेटनिंग कब होगा? When does the life threatening part comes in? when patient is bleeding heavily. जी Sir, as you said, patient is bleeding heavily. हाँ, लेकिन सर अगर यूट्राइन आर्टरी लाइक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट सेड, लेकिन हमने पहले से अगर उसको नहीं डाला है सारा उसका जो कैथेटर है यूट्राइन आर्टरी का, तो वो तो अभी देखो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ड्यूरिंग ऑपरेशन सर्जरी आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहली बार भी किसी दफा भी मेरा ख्याल है कहा था, यूट्राइन जी आर्टरी सर। एम्बोलाइजेशन के जो बैलून्स होते हैं वो प्री ऑपरेटिवली कैथ लैब के अंदर डलते हैं अंदर दैट, या जो यस बहुत सर। ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो ये सी आर्म के थ्रू भी डाल देते हैं कुछ लोग ड्यूरिंग सर्जरी, बट दैट इज नॉट द आइडियल थिंग, दैट इज नॉट द आइडियल थिंग। होता ये है कि आपने अगर ब्लीडिंग एंटीसिपेट कर रहे हो तो जाहिर है उसके लिए ब्लड लॉस के लिए पहले ब्लड आपका अरेंज होगा ताकि आपके पास कुछ टाइम पीरियड हो। दूसरा, दे आर मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स टू स्टॉप दैट ब्लीडिंग, जिसके अंदर क्या होता जी है, सर। सर वेजोप्रेसिन दे सकते हैं पेशेंट को ट्रांसवेनिन। देखो ना वेजोप्रेसिन की यूजेज है, आपकी आर्टराइन यूट्राइन आर्टरी की लाइगेशन है, एम्बलाइजेशन तो दूर की बात है ना, अगर कंफर्म कोई अच्छा बंदा अपना सर्जन है वो यूट्राइन आर्टरी को भी नहीं पकड़ सकता। वो जी सर। तीसरा, यू हैव टू बी द सर्जन, और भी आप बुला के उसे मल्टीपल काइंड ऑफ चीजें जो है वो आप यूज करके विल ट्राई लेवल बेस्ट। देखो यूट्रस की ब्लीडिंग तो नॉर्मली यूट्राइन वेसल से ही आनी है ना, यस सर। उस यूट्राइन वेसल्स को अगर आप मैनेज कर सकते हो तो चांसेस ऑफ डूइंग एन हिस्टेक्टमी दे गो डाउन वेरी, मतलब काफी नीचे चले जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन इन योर डिपार्टमेंट कि आपने मायोमेक्टमी के लिए खोला है एंड बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग, नॉट फॉर अदर कॉजेज, बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग आपको उसकी हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी? नहीं सर, कभी नहीं देखा। तो ये दैट इज योर इन योर डिफेंस। जब आप कहो जी हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमारे इतने अच्छे एक्सपर्ट सर्जन हैं, सीनियर्स हैं, ये करके वी ट्राई एंड वेरी रेयरली आई हैवंट डन इट। हाँ, आई हैव डन हिस्टेक्टमीज इन दोज केसेस जिसमें खुदा न खास्ता अंदर से एडिनोमाइसिस निकल आया, वो और पेशेंट को पेन इतनी सीवियर थी कि प्री मेडिकली उसने मैं कहा था कि जी अगर मेरी पेन नहीं ठीक होती तो मुझे तो पेन के लिए चाहिए, आई एम नॉट कंसर्न विद माय फर्टिलिटी, आप इसको मेरा पेन का मसला हल करो। देन वी मूव ऑन टू दैट पार्ट। यस वी हैव डन दैट पार्ट, वो हमने डिफरेंट एज ग्रुप में भी किए हुए हैं हिस्टेक्टमीज। मैंने तो आई इफ आई रिकॉल 20 साल की बच्ची में भी किया हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्वेयर पेन एडिशंस एंड व्हाट नॉट अदर मसले, तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए इस पेशेंट के लिए अंदर आपका डिफरेंशियल के अंदर अगर आपका एडिनोमायोसिस उसकी डिस्कशन नहीं होगी तो आप फंस जाओ एंड यू विल नॉट स्टार्ट अ मैनेजमेंट प्लान विद एन आईवीएफ इन योर माइंड और अडॉप्शन इन योर माइंड, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए पहले आपने उसका हाइड्रोसेल्पिंग्स ये सब चीजें कंफर्म करनी है। कंफर्म किस तरह करनी है, दैट्स अनदर मेथड, फिर उसके बाद देन उसकी मैनेजमेंट प्लान आ जाता है अगला। मेरी कोई बात समझ आई कि नहीं आई समझ? यस सर, थैंक यू सर। सर आपने ये जो सर अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने ये जो सूडोमैस की बात की है, काइंडली इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि लेप्रोटमी के बाद सूडोमैस मतलब उसकी क्या वो है इटियोलॉजी, सर कैसे बनता है? वो तो बड़ी दैट्स वेरी सिंपल, जिसकी पहले सर्जरीज आपकी हुई हुई है तो कई बार देखा है हमने कि जिसमें वो सस्पिशन ऑफ ओवेरियन मास भी निकलता है, ये भी निकलता है। ऑफ कोर्स उसके लिए करने के लिए आप जो है खोलते तो पता चलता है वहां पे सिर्फ इंटेस्टाइन्स का या किसी और चीज का कुछ ऐसा बना हुआ, नथिंग मोर। जी यानी वही एडहेजंस की वजह, सर एडहेजंस की वजह से बनेगा ना? प्रीवियस सर्जरी, ठीक है सर। जिसमें प्रीवियस सर्जरी है उसमें सिंड्रोमास, और दूसरा आई हैव इवन सीन दैट इन ट्यूबरकुलोसिस। जी जी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी इस तरह का एंसिस्टेड फ्लूइड और इस किस्म की चीजें जो हैं वो वी सीन दैट इज इसमें जिसमें सर्जरी पहले ना हुई। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, if there are no further questions then probably we'll finish the session now. चलो जी। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सर। सर। जी अगर एडेनोमाइसिस का केस होता तो फिर हम क्या मैनेजमेंट करते हैं इसमें?
आपका क्या ख्याल? अब फिर सर फिर हम क्या करते? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर फिर तो हम सर्जरी ना प्लान में फिर तो अगर हम कोई भी यूट्रस की सर्जरी करते तो इसमें हिस्टेक्टमी का चांस ज्यादा होता, तो फिर हम ना देखो करते। देखो, दो चीजें हैं। अगर तो आपका प्री ऑपरेटिवली एमआरआई पे डायग्नोज हो गया कि एमआरआई है, यस सर। फिर अगेन वी सिट डाउन विद द पेशेंट एंड एक्सप्लेन टू हर कि जी इस तरह का है, एडिनोमायोमा कांट बी टेकन आउट, जी इसकी वजह से उसको ये काउंसिल करते हैं। अगर इंट्रा ऑपरेटिवली अगर आपका हो जाता है, आपको नजर आता है और आप फाइंड आउट कि एडिनोमाइसिस है, तो फिर आप एडिनोमायोमेक्टमी करते हैं। एडिनोमायोमेक्टमी कि जितना चंक मैक्सिमम उसका निकल सकता है, जी। यू टेक इट आउट। तो एडेनोमायोमेक्टमी के फ्यूचर फर्टिलिटी के क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे, और अगर इसमें हिस्टेक्टमी के क्या चांसेस बनते हैं? ये देखो, हिस्टेक्टमी इज इंडिकेटेड ओनली एंड ओनली अगर आप उसको पेन के लिए करना चाह रहे हैं। जी। अगर फर्टिलिटी के लिए, unluckily loses the uterus during the procedure? देखो जो पेशेंट आपके साथ सब फर्टिलिटी के लिए आया है और आप उसकी सर्जरी करते हुए, यू डोंट वांट टू एंड अप इन डूइंग हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी तो इट कम्स डाउन वे डाउन द लिस्ट। You will at most try to save the uterus as much as possible. Within adenomyoectomy. Yes, that can be done. उसमें ये होता है जितना मैक्सिमम चंक उसका है, उस पर आप इंसीन देके उसको वेज रिसेक्शन करके निकाल देते हैं। एंड रूटीनली व्हाट आई हैव सीन कि एडिनोमाइक्टमी करते 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 जब आप उसको निकाल रहे होते हो सारे को, you end up going and reaching the pelvic Endometriality? cavity. उस पे you have to be very very careful ताकि ये ना हो कि आप उसकी एंडोमेट्रियम ही उड़ा दो, वो उड़ जाएगी तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी। लेकिन सर एडिनोमायोसिस तो हम ये नहीं कहते कि मल्टी पैरस वुमेन में कॉमन होती है, तो सर एडिनोमायोसिस का इनफर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट? Of course. What do you think is the relationship between endometriosis and adenomyosis? क्या रिलेशनशिप है इनका? 50% दोनों के साथ। देखो, अगर तो एंडोमेट्रियम ओवरी में जाके लग गई है तो वहां पे वो एंडोमेट्रोमा बनाते हैं। अगर यही एंडोमेट्रियम ग्रो करना शुरू हो जाती है इनसाइड द यूट्रस वॉल या उसकी मायोमेट्रियम में, तो वहां पे ये एडिनोमायोमा बना देता है। जी, इट्स द सेम थिंग। So इसलिए correlation between adenomyosis and endometriosis, because the same pathology, is very high, not 50%, very high. इसमें जिस पेशेंट के खास तौर पर रिकरेंट मिसकैरेजेस की भी हिस्ट्री हो, तो वो दैट शी इज मोर लाइकली टू हैव एन एडिनोमायोसिस causing the recurrent miscarriage in the wake of having an endometrioma. That is possible, लेकिन उसमें भी अगर ऐसा आ जाता है और ये है, उसमें फिर एडिनोमाइक्टमी करना और ऑफ कोर्स ऐसे पेशेंट के अंदर हिस्टोस्कोपी करना भी बड़ा लाजमी। Sir, जब when the patient loses a big chunk of her muscle during an adenomyomectomy, तो उसमें the next pregnancy if अगर हो गई तो फिर उसकी मतलब मसल यूट्राइन रप्चर के मतलब चांसेस ज्यादा होंगे। पर these are those patients जब वो प्रेग्नेंट होंगे तो फिर उनको आप ट्रायल ऑफ लेबर नहीं दोगे, they will end up having a C-section. हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो गया तो दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क, लेकिन अगर आपने मेटिकुलस किस्म की उसकी सूचरिंग की हुई हो और उसकी अप्रोक्सीमेशन ठीक हो तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? चलो बेटा, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन पे देना है। सर एक मैंने पेशेंट देखा था सेकेंडरी सबफर्टिलिटी का, और उसकी 5 ईयर बिफोर हिस्ट्री थी डीएनसी बाय दाई, और उसमें कोलोस्टमी की भी हिस्ट्री थी, और अब वो उस फर्टिलिटी वर्कअप के लिए आई थी तो उसकी एचएसजी पे बायलेटरल हाइड्रोसेल्पिंग्स थे, और सर इसमें अब और उसको कोई कंप्लेन नहीं थी,
वो बस सबफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए आई थी और पुअर पेशेंट है, मंथली इनकम 12,000 है। तो अब वो आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर सकती, हम फर्दर लेप्रोस्कोपी पे कंफर्म करेंगे या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए क्या इंडिकेशन होंगी? डिपेंड करता है आपके पास सर्विसेज कैसी हैं और क्या है। अगर तो ऑफ कोर्स आपके पास इतनी जी अच्छी सर, लेप्रोस्कोपी तो है, उसका प्लान बना हुआ था, लेप्रोस्कोपी प्लस हिस्टेरोस्कोपी। सर वो मुझे समझ नहीं ये आई। देखो ना, लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी तो आपके डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए है ना। जी सर। अगर तो उसको हिस्टेरोस्कोपी में या लेप्रोस्कोपी के अंदर आपके पास कोई ऑपरेटिव है, जैसे उसकी परफोरेशन है और उसकी हाइड्रोसेल्पिंग्स आ जाते हैं, जी सर। फिर उसमें ऑप्शन आपकी वही उसकी सेल्फिंजेक्टमी और आगे। और तीसरा बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जैसे सेकेंडरी फर्टिलिटी है और उसकी अल्लाह करे उसके पहले बच्चे हैं, फिर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। अगर कोई भी उसका बच्चा नहीं बच्चे है, नहीं है सर। अगर बच्चे उसके कोई नहीं है, तो then we have to really sit down and tell the patient what are the options. लेकिन ये भी मेरी बात याद रखना कि किसी पेशेंट को ये कहना कि जी आपके पास अगर 7 लाख रुपए होता तो आपका बच्चा हो जाता, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपके बच्चे नहीं हो सकते, which is also kind of very very depressing for the patient. So you need to be very very careful कि आपने कौन सी ऑप्शन किस पेशेंट को देना है। सर अगर एचएसजी पे हिस्टेरो उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स आ जाते हैं तो किस इंडिकेशन कैसे हमें कैसे पता चलेगा ये ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वो इसकी हो either सकती you can find it out in either two ways. One is either doing laparoscopy या laparotomy. To ठीक give है them the सर। maximum chances, not the best chances, but maximum chances. मैक्सिमम ठीक है चांसेस में यही है कि उसमें आप कितनी आप विजुअलाइसिस कर सकते हो। और इसमें ये भी मैंने पढ़ा है कि इसमें फिर आप अगर हाइड्रोसेल्पिंग से है तो उसकी सिर्फ सेल्पिंजॉस्टमी कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ताकि अंदर फ्लूइड ना जमा रहे। और वो अगर ट्यूब पेटेंट है तो शी कैन द पॉसिबिलिटी ऑफ कंसीविंग, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स वेरी 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 हाई चांसेस ऑफ टॉपिक दे कम है। सर अगर इसी पेशेंट का फ्रोजन पेल्विस निकल आए लेप्रोस्कोपी तो फिर आप उसकी विजुअलाइसिस करोगे फ्रोजन पेल्विस को। एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछना था, अगर टीओमेसिस है उसके साथ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की कंसेंट लेनी होती है, उसके साथ कर सकते हैं? Again, it has to be, you do need to remember, डॉक्टर शनाज भी आगे, मैं बस डॉक्टर शनाज 2 मिनट प्लीज मुझे दे दीजिए। इसमें सिर्फ एक चीज है, you need to treat the patient, not the disease. Yes, for all these patients, आपने जितना बात की उसमें IVF is the ideal number 1 choice. बट अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती और मे बी आप उसकी विजुअलाइसिस करके थोड़ी बहुत ट्यूब्स खोल सकते हो, सेल्फिंजॉस्टमी करके कर सकते हो, गिव हर अ चांस व्हिच कुड बी एज लो एज मे बी 5%, ऑफ कोर्स फिर आप वो करोगे, फिर आप बिल्कुल वो करोगे। तो दैट इज नॉट द आइडियल वन, लेकिन फॉर दैट पेशेंट वुड बी दैट वन। अगर वो बिल्कुल ही मतलब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक बच्चा जो रिक्शा ड्राइवर है यार, उसको इस तरह कह देना कि जी कि हम आपका बच्चा आईवीएफ से पैदा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, वो क्या वो रिक्शा बेच के आ जाता है। आई ऑनेस्टली सीन दैट वो बेचारा रिक्शा बेच के आ जाता है, इसमें आईवीएफ का सक्सेस रेट लेट्स सपोज अगर 40% भी है, उसके नहीं होता, एक तो बच्चा भी नहीं हुआ, तो सारी कंडीशन चेंज हो गई और आपने रोज की उसकी जो इनकम है वो भी आपने खत्म कर दी। इट शुड नॉट बी इन दैट मैनर। ऑफ कोर्स अदर एजेंसीज हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसको सब्सिडाइज भी करते हैं, जो करते हैं आप उनको वहां रेफर कर सकते हो ताकि मे बी दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम देयर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। नाउ थैंक यू सर। वेलकम।